Good morning, everyone. Today we are going to start our new chapter, that is semiconductor devices and electronics, the basics of electronics. All right. So, firstly, we will discuss about the types of materials, types and classification of solids. Then we will come to the semiconductors, and we will study more about semiconductor devices, primarily diodes, types of diodes like light emitting diodes and photodiodes, solar cell, photovoltaic cells. This will be our topics for this particular chapter. So I am going to discuss some basic things, and then we will specific to our board syllabus. That is, I am going to discuss only those topics which will be asked in your board examination. So firstly, what are semiconductors? For this we want to understand semiconductors, so we need to know what other types of solids are there. So firstly, as we know, there are three types of materials from our basic knowledge, that is metals, insulators, and another type of material that has resistivity, or we can say conductivity, between metals and insulators. So firstly, classification of solids. There are three types of solids. First one is metals having conductivity value sigma is equals to, we can say, 10 to the power 2 to 10 to the power 8 Siemens per meter. Alright, this value is very large. So these are metals, they can conduct electricity easily. Second type of materials are insulators. They have conductivity sigma equivalent to the order of 10 to the power minus 8 Siemens per meter, which has very low conductivity. They are not conducting electricity or charges. But there are some materials having conductivity between metals and insulators. So these are semiconductors. These are sigma 10 to the power minus 5 to 10 to the power 0, means 10 power 0 is 1 Siemens per meter. तो ये बढ़ते हुए फॉर्म में लिखा है. This type of materials are called semiconductors. So they have resistivity in the range opposite to this, 10 to the power minus 2 to 10 to the power minus 8, 1 by sigma हो जाएगा rho, and the unit is ohm meter. Similarly here, rho range is 10 to the power 8 ohm meter. So they have large resistivity, ये resist ज़्यादा करता है. Third one is this, rho is equals to 10 to the power 5 to 10 to the power 0 ओम मीटर. ठीक है, तो ये रेंज है मटेरियल्स की. नाउ वी हैव टू study semiconductors only. So let's come to the topic semiconductors, classification of semiconductors. सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, ये अभी हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे जब हम एटॉमिक लेवल पे इनको डिस्कस करेंगे. फर्स्टली, सेमीकंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्योर सेमीकंडक्टर्स. प्योर सेमीकंडक्टर्स. These are the purest form of semiconductors. There are some examples like silicon, germanium. These materials are called pure semiconductors. They have the conductivity in the range of sigma. I have already written as 10 to the power minus 5 to 10 to the power 0 Siemens per meter. Very low conductivity. All right, but much greater than insulators. See, these are the materials having
प्रेजेंस ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर्स, क्या होता है, इनमें चार्ज कैरियर्स होते हैं। प्रेजेंस ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर्स मीन्स कैसा होता है, जैसे एक मटेरियल हमने मान लिया, हम सिलिकॉन के बारे में बात करते हैं। सिलिकॉन जिसके जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, ठीक है। तो अगर हम एक सिलिकॉन क्रिस्टल ड्रॉ करते हैं तो 4 यानी इसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये सभी एटम्स आपस में कैसे बॉन्ड बनाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में आप जानते हैं। तो अगर एक मटेरियल है इस तरह का, ठीक है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स मैंने ये बनाए, इस वाले एटम्स के लिए ये बनाए, ये सभी के न्यूक्लियस थे, उनके पास 4, और ये सभी जो पेयर बना रहे हैं साथ में, इस वाले के लिए ये 4, तो ये दोनों पेयर बना लिए, इस वाले के लिए ये 4, तो ये दोनों पेयर बना लिए, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बन गए। लेकिन क्वालिटी क्या होती है इनकी, कि इनकी कंडक्टिविटी मेन कंडक्टर से यानी कंडक्टर मटेरियल से यानी मेटल्स से तो कम होती है। मतलब जनरली ये किस फॉर्म में रहते हैं, इंसुलेटर फॉर्म में रहते हैं। लेकिन ये जो कोवैलेंट बॉन्ड हैं ये बहुत कम एनर्जी इनको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करने के लिए। मतलब रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर हुआ, मीन्स 35 डिग्री और 40 डिग्री हुआ, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड टूटते हैं और चार्ज कैरियर्स हमको मिल जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये थोड़ा सा हमने इसको एनर्जी दिया और ये इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आ गया, बाहर आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ने को तैयार है, ठीक है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे गैप क्रिएट कर देगा, ठीक है। गैप यानी वैलेंसी क्रिएट कर देगा। अब मान लीजिए ये इसके पड़ोस वाला ये इलेक्ट्रॉन है ना, जो इस उसका था, क्या कहते हैं, ये था। मान लीजिए अब ये क्या होता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप किया इस होल में, इसको क्या कह देंगे, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उस जगह को कहते हैं होल। होल दूसरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन निकल के एक गया है आगे। इसी क्रिस्टल में वो अगले एटम से इंटरेक्ट करने वाला है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम के इस इलेक्ट्रॉन को, इस पोजीशन को पुश करेगा या फिर कह दें कि निकालेगा, यहाँ खुद बैठ जाएगा, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देगा। और यहाँ इसने एक होल क्रिएट किया है तो बगल वाले इलेक्ट्रॉन को ये होल अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब होल क्या चीज़ है, होल है एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी, एक इलेक्ट्रॉन का ना होना होल कहलाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो ऐसे मटेरियल जिसमें एक, ऐसे तो ये सभी फुलफिल्ड हैं, कोवैलेंट बॉन्ड हैं, लेकिन थोड़ा सा एनर्जी हमने दिया कि इलेक्ट्रॉन्स के कोवैलेंट बॉन्डिंग ये ब्रेक हो जाती है और एक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है, एक होल पीछे क्रिएट करता है, फिर बगल वाला इलेक्ट्रॉन ये कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस होल में जाएगा और यहाँ पे एक वैलेंसी क्रिएट कर देगा, होल क्रिएट कर देगा। यानी अगर हम समझें कि एक कॉन्सेप्ट समझें कि होल जो है वो असल में पीछे शिफ्ट कर रहा है अगर इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर पॉजिटिवली चार्ज है और आगे बढ़ता है तो उसकी उल्टी दिशा में जो होल एक वैकेंसी जो बाएं पीछे चलती चली जा रही है, वो एक तरह से कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है जो पीछे मूव कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, वो वैलेंसी है केवल। तो होल एक पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। होल के चार्ज अगर आपसे कहें कैसा होता है तो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का उल्टा होता है और उतना ही चार्ज ये अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया होल। तो और इस तरह के मटेरियल जिसमें चार्ज कैरियर होते तो हैं लेकिन जनरली रूम टेम्परेचर्स पे 0 होते हैं। और देखिए जितने नंबर ऑफ होल पैदा होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे, तभी वो होल पैदा हुए हैं। सो वी कैन से फॉर एन इंट्रिंसिक चार्ज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स number of electrons is equals to number of holes is equals to the total number of charge carrier। क्योंकि दाएं तरफ करंट बढ़ाने के लिए चार्ज, मोबाइल चार्ज कैरियर कितने चाहिए, n चाहिए, क्योंकि n ही इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो n ही चार्ज कैरियर वो हैं जो कंडक्ट कर रहे हैं, यानी चलने के काम आ रहे हैं, करंट को कंडक्ट करा रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर, जिसको कह सकते हैं Ni से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Ni इज इंट्रिंसिक
चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये बात हो गई। नेक्स्ट इज, अब अगर ये हो गया तो नेक्स्ट टाइप ऑफ मटेरियल क्या है, जो दूसरा टाइप है, दीज आर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? आपने मोबाइल चार्ज कैरियर्स देख लिया, होल हो गए और इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दोनों के बारे में देख लिया कि इलेक्ट्रॉन्स ही निकलते हैं तो होल क्रिएट करते हैं, यानी एक होल और कुछ नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन वैकेंसी है। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन राइटवर्ड शिफ्ट करता है और दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो पीछे वो अपने होल छोड़ जाएगा और वहाँ पे बगल से लेफ्ट साइड से दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, या फिर राइट साइड से या कहीं और से दूसरा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक मटेरियल्स क्या होते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में वो जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स आपने देखा कि फिक्स थे, क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर नहीं था, है ना, सभी कोवेलेंट बॉन्ड पीछे बने हुए थे। एक्सट्रिंसिक में हम बाहर से कुछ एक इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो हम कह सकते हैं सेमीकंडक्टर्स ऑब्टेन्ड बाय एडिंग और डोपिंग द प्योर सेमीकंडक्टर विद स्मॉल अमाउंट ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक इम्प्योरिटी। इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स when added with some impurity, इम्प्योरिटी मतलब दूसरे टाइप का कोई और एलिमेंट उसमें जोड़ रहे हैं या फिर कोई और मतलब मटेरियल वहाँ पे जोड़ रहे हैं, और जोड़ने की टेक्निक क्या है उसको हम कहते हैं डोपिंग, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इम्प्योरिटी, दूसरे टाइप की इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं so that we can increase, क्या करना चाहते हैं, कंडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज मोबाइल चार्ज कैरियर्स। तो क्यों हो रहा है ये? मोबाइल चार्ज कैरियर्स को, यानी जो चल सकने वाले चार्ज कैरियर्स हैं उनको बढ़ाने के लिए। जैसे अब देखिए इसमें क्या होगा, एक बेसिक सा अभी हम लोग केवल इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में और आगे देखेंगे। तो अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, मान लीजिए एक सिलिकॉन ही था, सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन क्रिस्टल था, सभी की वैलेंसी 4 है। ठीक है, ये कौन सा क्रिस्टल ले रहे हैं? सिलिकॉन। ये कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, ये कोवेलेंट बॉन्ड, ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे मान लीजिए हमने इसमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड करी, और इस इम्प्योरिटी की क्वालिटी ये है कि इसकी वैलेंसी, ये एक पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी थी, यानी ऐसा मटेरियल, ऐसा दूसरा जो इसमें हमने ऐड कर रखा है इम्प्योरिटी, जैसे एक एग्जांपल के लिए समझ लीजिए हमने कोई एक पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डाली है, जैसे आर्सेनिक हो गया, आर्सेनिक एक पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है। क्यों? क्योंकि इसकी वैलेंसी 5 होती है, इसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की अलग से आप देख रहे हैं, मतलब 5 के 4 वाले तो इसके साथ इंटरेक्ट कर गए सिलिकॉन के क्रिस्टल के साथ, क्योंकि सिलिकॉन की जो वैलेंसी थी वो 4 थी, लेकिन ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं ये अलग से, इसको कोई पेयरिंग नहीं मिली, इसने कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाया, ये फ्री स्टेट में यहाँ पे, यानी ये फ्री है इस पूरे क्रिस्टल में मूव करने के लिए। एक क्रिस्टल में नंबर ऑफ ये जो एटम्स हैं कितने होंगे? बहुत ज़्यादा होंगे। 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है? 6 × 10⁻23 एटम्स। तो अगर इतनी क्वांटिटी ले लिया, यानी एक क्रिस्टल में मिलियंस ऑफ ये सभी क्रिस्टल्स हैं, ये सभी एटम्स हैं, और आर्सेनिक की भी हमने इम्प्योरिटी ऐड करी, तो इसमें भी हम जो संख्या ऐड करेंगे आर्सेनिक की वो लाखों में होगी। तो एक बार में ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो लाखों की संख्या में अलग से मिल गया, यानी ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमारे मोबाइल चार्ज कैरियर की तरह अवेलेबल है। अब आप सोचिए कि ये इलेक्ट्रॉन
थोड़ा सा भी अगर एक्साइट होता है, इसको थोड़ा सा भी पोटेंशियल लगा के हमने एक्साइट किया, वोल्टेज लगा के, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने सबसे करीब के कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेगा, यानी इधर वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्लेस अगर होता है तो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को तो फ्री करेगा ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन उसने फ्री किया, और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पे एक खुद बैठ गया, ठीक है, लेकिन यहाँ से तो ये हट गया था, यानी जहाँ इलेक्ट्रॉन हटा वहाँ पे तो एक, जहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन हटा वहाँ पे कुछ एक, अभी तो ये फ्री स्टेट में है, यहाँ पे अभी कोई भी एटम से ये जुड़ा हुआ नहीं है, ये इस एटम के आउटर शेल में है, ठीक है ना, इस एटम के आउटर शेल में, यानी ये इधर वाले को ब्रेक करेगा तो खुद यहाँ बैठेगा और अलग से बाहर निकाल, ये खुद यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, यानी अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर निकलता है तो इस जगह पे ये इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से नंबर ऑफ, ये तो केवल इस इलेक्ट्रॉन के कारण हुआ, लेकिन हमने जब वोल्टेज लगाया या फिर टेम्परेचर बढ़ाया तो अलग से ये जो सिलिकॉन एटम के जो बिहेवियर है उस टेम्परेचर के कारण भी तो कोवेलेंट बॉन्ड कुछ टूटेंगे, यानी ये मोबाइल चार्ज कैरियर भी मिलेगा और जो कोवेलेंट बॉन्ड अलग कहीं टूट रहे होंगे उनके कारण भी चार्ज कैरियर निकलेगा और वहाँ पे कुछ होल्स भी बन रहेंगे, यानी होल्स भी बन रहे हैं टेम्परेचर बढ़ाने पे। इस इलेक्ट्रॉन जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको भी मोशन मिल रहा है, वो भी कोवेलेंट बॉन्ड टूट रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड कुछ अपने से भी एक्साइट होकर निकल रहे हैं, टूट रहे हैं, तो होल्स भी टूटेंगे, लेकिन वो होल तब बनेंगे जब कोवेलेंट बॉन्ड टूटे, और लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स जो अलग से फ्री इलेक्ट्रॉन है ये तो मूव करेंगे ही। तो यानी एक तरह से देखा जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा नंबर ऑफ होल से ज़्यादा होंगे ना, तो इस तरह के मटेरियल्स में जहाँ हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करी है आर्सेनिक की, जिसकी वैलेंसी 5 है, हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स से, यानी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं मोबाइल चार्ज कैरियर वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि ज़्यादा संख्या में कौन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे हम 3 वैलेंसी वाली इम्प्योरिटी ऐड करके भी एक मोबाइल चार्ज कैरियर्स, नंबर ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर्स अपने इंप्रूव कर सकते हैं। तो वैलेंस बैंड मॉडल क्या चीज़ है, इसी मटेरियल को, यानी जो हमने इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स देखे उसी को वैलेंस बैंड जो अभी मैंने आपको बना के दिखाया वो वैलेंस बैंड मॉडल ही है, ठीक है, कि यहाँ पे किसी भी समय इलेक्ट्रॉन क्या है वो एटम से निकलता है, और जब इलेक्ट्रॉन निकलता है अगर वो एटम से निकल रहा है, ठीक है, एटम की किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में था तो वहाँ वो होल क्रिएट करता है, एटम को पॉजिटिवली चार्ज करता है, और पॉजिटिवली चार्ज करेगा यानी उस जगह के पे हम कह सकते हैं एक होल है ना, होल पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो एक ये तो बात हो गई हमारे क्या कहते हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी की। जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर आपने पढ़ ही लिया है। तो एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर में पहला टाइप होती है एक्सट्रिंसिक के अंदर, एक्सट्रिंसिक के भी 2 टाइप होते हैं। पहला है एन टाइप, जिसको अभी आपने देखा, यानी विद पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के साथ वाले जो होते हैं वो एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, ऐसे को कहते हैं एन टाइप, ठीक है। कौन सी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की जा सकती है, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, फास्फोरस हो गया, है ना। इस तरह के मटेरियल्स की जब इम्प्योरिटी एक सेमीकंडक्टर मटेरियल में यानी सिलिकॉन या जर्मेनियम में ऐड की जाती है, या बहुत सारे और सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं, कार्बन ही है, तो ऐसे मटेरियल्स जो फॉर्म होते हैं, जब वो क्रिस्टल फॉर्म होगा वो एक एन टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल होगा। क्यों एन टाइप का मतलब, एन टाइप का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन्स आर इन मेजॉरिटी। आपने देखा मैंने कैसे अभी बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉन संख्या में ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो पर एटम जो हमने पर जो इम्प्योरिटी ऐड की उसके हर एटम में एक इलेक्ट्रॉन तो आपको मिल ही रहा है एक्स्ट्रा, ठीक है। और इस तरह के मिलियंस ऑफ एटम आपके ऐड हुए हैं इम्प्योरिटी के तौर पे, तो मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें वहाँ पे पहले से मोबाइल कैरियर की तरह एक्स्ट्रा में मिल गए हैं, और जो कोवेलेंट बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो अलग, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में
मटेरियल वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, एन टाइप मटेरियल में मेन मोबाइल चार्ज कैरियर, यानी मेजॉरिटी कौन है, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और हमेशा एन ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज मच ग्रेटर देन एन एच, आपने देखा था, ठीक है। और इसके साथ ही हम कह सकते हैं अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को n से रिप्रेजेंट करें और होल्स की संख्या यानी इलेक्ट्रॉन वैकेंसी, होल्स मतलब हमेशा आप समझ लीजिएगा होल्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वैकेंसी। अगर मैंने होल्स की संख्या को p से रिप्रेजेंट किया तो हम कह सकते हैं n की संख्या से इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंटेड है और p की संख्या से होल्स, तो n इज मच मच ग्रेटर देन p, ठीक है। लेकिन p रहेंगे क्योंकि कुछ एक तो वैलेंस बैंड भी टूटेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड भी टूटेंगे, और कोवेलेंट बॉन्ड जब टूटेगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है और वहां पे एक पॉजिटिविटी क्रिएट करता है। तो वो जैसे मान लीजिए एक कोवेलेंट बॉन्ड ये है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से टूट के ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो यहाँ इसने एक होल क्रिएट किया, यानी एक पॉजिटिविटी, यानी बगल वाले कोवेलेंट बॉन्ड टूट के आने की संभावना है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और फिर वो होल यहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है तो होल पीछे बढ़ता है, ठीक है, समझ सकते हैं ये। तो ये बात हो गई हमारे वैलेंस बॉन्ड मॉडल, कुछ एक बेसिक आइडिया ये हो गया, क्योंकि हमें इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। अब देखिए इसी तरह दूसरा मटेरियल हो गया, उसको कहते हैं पी टाइप मटेरियल। सेम वही इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है लेकिन पी टाइप मटेरियल क्या होते हैं, यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, हमने उसी सिलिकॉन क्रिस्टल having nucleus and valency 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमने जो बीच में ये जो इम्प्योरिटी ऐड करी, मान लीजिए मैंने एक ऐसी इम्प्योरिटी ऐड करी है जिसकी वैलेंसी 3 है। ऐसी कौन सी इम्प्योरिटी है, एग्जाम्पल के तौर पे बोरॉन होता है ना, और एल्यूमिनियम होता है, गैलियम होता है ना। तो मान लीजिए मैंने एल्यूमिनियम ऐड किया, ठीक है ना, एल्यूमिनियम हैविंग ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। यहाँ हम किस तरह की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, किसमें, प्योर सेमीकंडक्टर में। यहाँ इसकी वैलेंसी 3 है, यानी 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर शेल में अवेलेबल हैं बगल वाले एटम से जुड़ने के लिए, ठीक है ना। ये सब तो अपनी रेगुलर बिहेव में रहेंगे, है ना, यानी कोवेलेंट बॉन्ड आपस में बनाएंगे, लेकिन बीच बीच में जहाँ पे ये देखिए ये 4 हो गए, ये दोनों अलग ये बना लिए कोवेलेंट बॉन्ड, यानी ये जो सिलिकॉन के क्रिस्टल हैं ये आपस में तो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन ये जो देखिए ये क्या है, ये मैंने कहा एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम का 3 अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 वैलेंस ये जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए, लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं ना, इसके पास तो 3 ही है। तो ये जो यहाँ पे हम कह दें कि ये जो कार्बन है, ये जो सिलिकॉन है, ये अपना ये यहाँ पे इसके पास एक होल एक्स्ट्रा रह जाएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ एक पॉजिटिव आयन यहाँ पे अभी भी अवेलेबल है ना। ये सभी बगल वाले जो सिलिकॉन क्रिस्टल है वो सभी अपना बॉन्डिंग कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसके पास एक एक्स्ट्रा में होल रह गया है। क्या रह गया, होल रह गया। ये क्या है, होल। यानी जब हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो एक्स्ट्रा में क्या रहता है, होल, यानी मेजॉरिटी कैरियर यहाँ पे क्या रहने वाले हैं, होल, ठीक है। तो होल्स यहाँ मेजॉरिटी कैरियर में हो जाते हैं। अब जब होल मेजॉरिटी कैरियर में होंगे तो ये जो बॉन्डिंग है, ये इलेक्ट्रॉन जब भी एक टूटेगा तो वो होल में जाएगा, यानी होल पीछे साइड चलेगा, यानी किसी भी समय नंबर ऑफ होल्स यानी वैलेंसी पॉजिटिविटी ये ज़्यादा होगी कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, अगर मैं इसको नाम होल्स की संख्या को p नाम दिया तो p इज मच मच ग्रेटर देन n,
ठीक है, और यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, होल्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये बात हो गई ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी की कौन कौन से हो सकते हैं। आर्स यहाँ पे एल्यूमिनियम हो सकता है ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी, बोरॉन हो सकता है, और नेक्स्ट है आपका मान लीजिए गैलियम भी एक होता है, ठीक है। तो ये 2-3 और एक आध नाम याद रखिए कि कभी कभी पूछ लेते हैं कि कौन सी ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड क्या चीज़ होती है, कैसे सेमीकंडक्टर्स में पहले इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वैलेंस बैंड में होते हैं, कंडक्शन बैंड में जाते हैं। तो बैंड थ्योरी क्या होती है ना। इलेक्ट्रॉन्स असल में डिस्क्रीट लेवल पे ना होके एक बैंड में फ्लो किया करते हैं, उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।